Assalamu alaikum everybody and welcome to PreMedPK. My name is Tahrim Gurtezi and my MDCAT score was 176 out of 200. Today we are going to do our daily test 32, which is the mock test, second mock test for Punjab. So moving to questions, the first question, it is our national duty to dash our vote in the general election. Cast our vote, beta is the right option. Vote को cast किया जाता है, ठीक है. Votes are always cast, which means to direct an entry. Next is she is intelligent enough to dash things to serve her own purpose, to maneuver things to serve her own purpose. Beta is the right option. ठीक है. It is a verb which means to perform a movement in order to secure an advantage. Next is she jigged about with the excitement of hearing the news of her sister's wedding. Beta is the right option. Jigged, ठीक है. Jig means a dance performed out of excitement, ठीक है. Weep का मतलब होता है cry करना. Talking and running doesn't suit here, so beta is the right option. Everyone should be delegated duties and assignments according to his or her abilities. Delegated का मतलब है to assign a task, ठीक है. So Charlie is the right option. आपने एरर स्पॉट करना है. वी वर 10 miles up the highway when I happened to see this classified. एडवर्टाइजमेंट होगा, टू saw this नहीं होगा. सो चार्ली यहाँ पे एरर है. ऑल इज़ वेल what ends well, तो what ends well नहीं होगा. what यहाँ पे एरर है. all is well when it ends well होना चाहिए, ठीक है, not what. so alpha is the error. The child was fully dressed and sitting in her father's lap near the kitchen table. Sitting in यहाँ आपके पास error है, ठीक है. Dressed is past tense while sitting is present continuous tense, making the sentence incoherent, ठीक है. Next is choose the correct sentence from the following options. I thought it was over very carefully before broaching the subject to Asma, ठीक है. So अल्फ़ा आपके पास correct है. I thought it over very carefully before broaching the subject to Asma. अल्फ़ा आपके पास correct है, ठीक है. I thought it by very carefully नहीं होगा. I thought through very carefully नहीं होगा. I thought over it नहीं इसमें यूज़ किया हुआ डेल्टा में, ठीक है. So अल्फ़ा is the right option. Choose the correct sentence from the following options. He left in a blaze of anger, ठीक है. He left with a blaze of anger नहीं होगा. He left into a blaze भी नहीं होगा. He left back भी नहीं होगा. He left in a blaze of anger. Charlie is the right option. Blaze of anger is a mood, so person has to be in it, ठीक है. mood में होता है. Charlie is the right option. Choose the correct sentence from the following. Pride was an intrinsic component of his personal makeup. अल्फ़ा आपके पास सही है. बीटा में देखें pride was a intrinsic नहीं होगा, an intrinsic होना चाहिए. चार्ली में देखें pride and intrinsic, ये भी गलत है. pride were an intrinsic, डेल्टा भी गलत है. Choose the correct sentence. There was much cheering and singing and a bread fight across the dining hall, ठीक है, ये सही है. बीटा. अल्फ़ा में देखें there was much cheering and singing and bread and a bread, a का यूज़ नहीं हुआ हुआ, ठीक है. चार्ली में देखें there was more, much यूज़ होना चाहिए था. डेल्टा में देखें cheering की जगह cheer यूज़ किया हुआ है. सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. बोथ पेरेंट्स ऑफ जमील वर बाय देन लॉन्ग डेड, ठीक है. सो बाय देन आपके पास यहाँ टाइम शो कर रहा है कि बोथ पेरेंट्स बाय देन, द बोथ पेरेंट्स ऑफ जमील वर लॉन्ग डेड, काफ़ी अर्से से उनकी डेथ हुई हुई थी, ठीक है. बोथ पेरेंट्स ऑफ चार्ली आपके पास करेक्ट है, ठीक है. अल्फ़ा में देखें बोथ पेरेंट्स ऑफ जमील वर देन, ये गलत है. वर देन बीटा में भी यही बात है. डेल्टा में देखें वर देन बाय, ये भी गलत है, ठीक है. सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. देन बाय द but the men eat their supper with good appetite, ठीक है. with good appetite होगा, not in, not for, not into, ठीक है. so alpha is going to be the right option. Major cause of hepatitis B is blood transfusion. alpha is the right option. During animal division spindle fibers को form करते हैं centrioles. beta is the right option. Which compartment of cell is concerned with cell secretion? तो component of cell is concerned with cell secretion, तो गोल्जी अपरेटस आपके पास सिक्रीट कर रहा होता है सेल से सिक्रीशंस, ठीक है. सो इट इज़ मोस्ट अबंडेंट इन सिक्रीटरी सेल्स, ठीक है. सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन इज़ अ स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल इन फंजाई इन बैक्टीरिया. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. फंजाई की सेल वॉल सेलुलोज फंजाई की सेल वॉल चाइटिन की बनी हुई होती है. एल्गी एंड प्लांट्स की आपके पास किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की. एंड बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी हुई होती है. सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स, वो कहाँ होते हैं? इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, क्रिस्टे के अंदर होते हैं. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल आप इनटेक करो, दैट इज गोइंग टू बी पिनोसाइटोसिस, ठीक है. फैगोसाइटोसिस इज यूज्ड फॉर द इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया? तो ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रही है? इनर मेम्ब्रेन में हो रही है, क्रिस्टे में हो रही है. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. इन स्पाइट ऑफ ऑल द टॉर्चर द पुलिस हैव फाउंड टू डैश एनी कन्फेशन फ्रॉम 3 हैव फेल्ड टू
dash any confession from the thief. Illicit, ठीक है, बीटा is the right option. It means that it implies that police have been unsuccessful in obtaining any confession from the thief despite using the torture, so beta is the right option. He picked up one or two magazines and after a hurried glance at the content होना चाहिए, not on the content, after a hurried glance at the contents, so Charlie is the right option. You have put your life in his hands many a times, तो many a times नहीं होगा, many times होगा. Charlie में error है आपके पास, ठीक है, many times use होगा instead of many a times, ठीक है. The use of many a times is grammatically incorrect, ठीक है. बट द मैन एट देयर सपर इन गुड एपिटाइट्स, इन नहीं होता, विद गुड एपिटाइट्स होगा, तो डेल्टा में आपके पास एरर है. मैन ईट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स. अ कॉमन सेंस ऑफ फेलियर is a mistaken ambition of the boys of the part of his parents. Of the boys of the part of his parents नहीं है, is the mistaken ambition of the boys on the part of his parents, not of the part, ठीक है. तो ऑफ में यहाँ एरर है, चार्ली में ऑन द पार्ट होना चाहिए. चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. ही हैड डाइड ऑन द सेम डे, ठीक है. दे हैव डाइड ऑन द सेम डे, ठीक है. चार्ली आपके पास करेक्ट है. दे हैव डाइड इन द सेम डे नहीं होगा, ओवर द सेम डे. दे हैव डाइड ऑफ द सेम डे भी नहीं होगा. पैसिव इम्यूनिटी आपके इज़ यूज्ड अगेंस्ट, तो टेटनस में आपके पास पैसिव इम्यूनिटी यूज़ होती है, ठीक है. आप एंटी सीरा दे रहे हैं बॉडी को, एंटीबॉडीज़ आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज़ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. नेक्स्ट इज बी लिम्फोसाइट इज़ नेम ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विद, तो बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट इस वजह से कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप विद बुर्सा ऑफ Fabricius. Beta is the right option. In light independent stage of photosynthesis, light independent यानी डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है टू गिव एन अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट. अल्फा इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है. ग्लाइकोलिसिस में ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट. अब बिसफॉस्फेट का मतलब है 2 फॉस्फेट, बिस का मतलब होता है 2, ठीक है. तो ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट है, इसका मतलब पोजीशन नंबर 1 and 3 पे आपके पास एक फॉस्फेट अटैच हुआ हुआ है, ठीक है. अब वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट. अब वो सिर्फ 3 फॉस्फेट रह गए, यानी पहली वाली पोजीशन से फॉस्फेट एलिमिनेट हो गया. तो कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स लूज़ हुए हैं? ओनली 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. ये वाला सिर्फ लूज़ हुआ है, बाकी ये वाला फॉस्फेट तो इधर ही है, ठीक है. मेलेट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय डैश टू ऑक्सैलो एसिटेट इन क्रेब्स साइकिल, तो NAD उसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है. मेलेट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय NAD टू किस में हो रहा है? टू ऑक्सैलो एसिटेट इन द क्रेब्स साइकिल. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. कैरियर्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन किसके अंदर होते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. द DNA फॉर्म बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसको आप कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं, ठीक है. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. ड्यूरिंग मेटर्नल माइटोसिस जो नॉन डिस्टंक्शन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, उसकी वजह से आपके पास एग में 24 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, उसकी वजह से ऑफस्प्रिंग को डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है. इट इज़ ट्राइसोमी 21, उसका जो ऑटोसोम होता है 21 क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर आपके पास 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट्स दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट इन अ फॉस्फोलिपिड लेयर. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल में होते हैं? देयर आर 9 ट्रिपलेट्स. चार्ली, ठीक है. Which of the following cell structure is involved in the synthesis of lipid? Endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of lipid, ठीक है. ब्लड ग्रुप एंटीजन में आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन से ही आपके पास ब्लड ग्रुप एंटीजन्स बने हुए होते हैं, सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. मायोसिन आपके पास एक फिब्रस टाइप ऑफ प्रोटीन है, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. Myosin has a fibrous structure and is classified as a fibrous protein. Which of the following is an example of unsaturated fatty acid? ओलिक एसिड आपके पास unsaturated है, कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है. नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन 1 टर्न ऑफ DNA 10 बेस पेयर्स होते हैं इन 1 टर्न में. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. लिम्फ वेसल ऑफ विलाई को आप कहते हैं लैक्टियल. डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाय, आपके पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में बाइकस्पिड वाल्व होता है. बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे उसने राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल पूछा है. चार्ली इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. फ्लैप ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व आर अटैच्ड टू मस्कुलर एक्सटेंशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल नोन एज पेपिलरी मसल्स, ठीक है. बीटा इज द राइट ऑप्शन. 1 कंप्लीट हार्ट बीट आपके पास 0.8 सेकंड्स के लिए होती है. इट है 0.1 सेकेंड, 0.3 एंड 0.4 सेकेंड में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है सिस्टोल को, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल को, ठीक है. तो उनको आप जब ऐड अप करोगे तो 0.8 सेकेंड आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1 कंप्लीट हार्ट बीट. हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट व्हेन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती हैं फ्रॉम SA नोड. SA नोड से आपके पास इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती हैं, इसको आप पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. 70 to 85% कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में कैरी हो रही है एज बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एज बाइकार्बोनेट आयंस ट्रैवल हो रही है, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन.
डिक्रीज़ इन एफएसएच एंड इंक्रीज़ इन एस्ट्रोजन, ठीक है। तो आपके पास जब एफएसएच क्या करता है, एफएसएच एस्ट्रोजन की रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जब एफएसएच ज़्यादा होता है तो एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, लेकिन जब एस्ट्रोजन सिक्रीट हो जाता है तो वो उसका नेगेटिव फीडबैक होता है एफएसएच, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जब ज़्यादा होगा तो एफएसएच कम हो जाएगा। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं आपके पास एक और हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज़ एलएच, ठीक है। सो डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन लीड टू द सिक्रीशन ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू कैरियर प्रोटीन, देखो जब वो कह रहा है कैरियर प्रोटीन, दिस मीन्स जब कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही है दैट इज गोइंग टू बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ऑर्गेनाइली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो एटीपी सिंथेसाइज कर रहा है, बीटा इज द राइट ऑप्शन। मोस्ट कॉमन रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मोस्ट कॉमन रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज, ठीक है। आपके पास एरोबिक रेस्पायरेशन, एनरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है, उसमें आप ग्लूकोज ही यूज़ करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है। द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप, तो आपके पास सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड, अगर मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो आपके पास मोनोसेक्राइड्स में आप कहते हैं 3 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं इन मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड वो होगा जिसमें आपके पास 3 कार्बन होंगे, ठीक है। अब उसमें 2 होते हैं, आपके पास होता है एल्डो ग्रुप अटैच, एक आपके पास होता है एल्डो ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, या आपके पास कीटो ग्रुप अटैच होगा। तो वो कह रहे हैं सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड यानी 3 कार्बन वाला जिसके अंदर कीटो ग्रुप है तो उसको आप कहते हो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर एल्डो ग्रुप वाला पूछता तो वो ग्लिसरल्डिहाइड होता, लेकिन उसने कीटो ग्रुप वाला पूछा, दैट इज गोइंग टू बी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, बीटा इज द राइट ऑप्शन। इफ द जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स देन द टोटल पॉसिबल जेनेटिक कोड्स विल बी, तो आपके पास एक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, टोटल पॉसिबल जेनेटिक कोड्स आपके पास कितने होंगे, 64 होंगे। आपने इसे क्या कर दिया, यू डेड 4 रेज टू द पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, आपने क्या 4 4 16 16 4 64, ठीक है। सो यू डेड 4 रेज टू द पावर 3, ऐसे लिख देती हूँ, 4 रेज टू द पावर 3 दैट इज गोइंग टू बी 64। So where 4 is the total number of nucleotide bases and 3 is the number of bases that can be in one genetic code, ठीक है। So this is the right option, Charlie. All coenzymes are derived from vitamins, delta is the right option, ठीक है। The competitive inhibitor have structural similarity with, competitive inhibitor की structural similarity होती है एक्टिव साइट से, क्योंकि सबस्ट्रेट से, क्योंकि उसने किसके साथ अटैच होना होता है, एक्टिव साइट पे आके अटैच होना होता है, ठीक है। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, उसकी सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है तभी सबस्ट्रेट की जगह वो आके एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम पीएच फॉर पेनक्रियाटिक लाइपेज, दैट इज 9.0, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। कोफैक्टर टाइटली बाउंडेड टू एंजाइम ऑन परमानेंट बेसिस, तो आपके पास दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये वो कोफैक्टर होता है, इसने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया हुआ होता है एक्टिव साइट के साथ, ये टाइटली बाउंड होता है, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मेनली अफेक्टेड बाय HIV, तो HIV आपके पास हेल्पर टी सेल्स या हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स कॉज परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन, तो इट इज़ टेट्रासाइक्लिन, या आपके पास वो हैं ड्रग अब्यूज़ के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। सो अगर आप ज़्यादा ले लेंगे यंग चिल्ड्रन में, अगर आप मिसयूज़ कर देंगे टेट्रासाइक्लिन को, ठीक है, सो आपके पास उनके टीथ डिस्कलरेशन हो जाएगी, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन विच द बैक्टीरियोफेज अटैक द बैक्टीरिया और अपना DNA इंजेक्ट करता है, दैट इज़ लैंडिंग। सबसे पहले वो क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज, ये एक बैक्टीरिया की सरफेस है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज यूँ करके आया, नेवर माइंड माई डायग्राम, ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज आके लैंड किया सबसे पहले, ठीक है। फिर उसने अपनी टेल को क्या किया, टेल की कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, एंड फिर पेनिट्रेशन से आपके पास यहाँ उसका जेनेटिक मटेरियल आ गया, एंड पेनिट्रेशन के बाद यहाँ से उसने इसको पेनिट्रेट किया, ठीक है, और फिर उसने DNA इंजेक्ट किया। सो अल्फ़ा आपके पास करेक्ट सीक्वेंस है। डैश प्रोसेस बाय विच द सेल टेक्स इन फ्लूड अलॉन्ग विद डिजॉल्व स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो फ्लूड ले रहा है, सो दैट इज स्पिनोसाइटोसिस, ठीक है। इनटेक ऑफ फ्लूड इज नोन एज स्पिनोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस को आप सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग होती है। इन ह्यूमन ई कोलाई इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, ई कोलाई आपके पास इंटेस्टाइन्स में होता है और ये आपके पास वाइटामिन फॉर्मेशन करवा रहा है, कौन सा वाइटामिन, विटामिन के, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल का ये काम है कि वो सिक्रीट करें म्यूकस, डेल्टा, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, एक आपके पास होते हैं म्यूकस नेक सेल्स, वो म्यूकस सिक्रीट करें, फिर आपके पास चीफ सेल्स हैं, ठीक है, एंड देन चीफ सेल्स या ज़ैमोजेनिक सेल्स हैं, देन पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, तो 3 टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। इनका आपके पास डिफरेंट फंक्शन है, म्यूकस सेल्स म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास चीफ सेल्स हैं वो आपके पास क्या सिक्रीट कर रहे हैं, पेप्सिनोजन,
और जो आपके पास पैराइटल सेल्स हैं वो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करें, ठीक है। नेक्स्ट इज HCl इन द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रीटेड बाय, तो HCl कौन सिक्रीट करे, ऑक्जेंटिक सेल्स, अभी बताया, बीटा इज द राइट ऑप्शन। हिस्टामीन इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो बेसोफिल आपके पास हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, वैसे तो जनरली आपकी बॉडी में आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, बट इन केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन इसका फंक्शन थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। आपके पास लंग्स से आ रही है पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और ये हार्ट में एंटर करेगी थ्रू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। सो द पल्मोनरी वेन इज़ द ऑप्शन, 4 पल्मोनरी वेन्स आ रही होती हैं, ठीक है। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग में आपके पास प्रोथ्रोम्बिन है और फिब्रिनोजिन है, दोनों का यही काम है, सो ईटा इज़ द राइट ऑप्शन। ADH इज़ रिलीज फ्रॉम, तो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, इसे आप वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। ये रिलीज़ हो रही है फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। फॉर्म कहाँ हो रही है, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस बना के इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास रखवा लेते हैं, वहीं स्टोर होती हैं, वहीं से रिलीज़ होती हैं। नेक्स्ट इज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर, आप उसे कहते हैं कॉर्पस कोलाइजम, ठीक है। अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन एंड मेंटेन द बॉडी पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करना इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो प्यूपिल डायलेट होना इज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बाकी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई, डिग्री आपका ब्रोंकाई भी क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज़ इन हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। डाइजेशन पेरिस्टाल्सिस रुक जाती है, ठीक है, सो या स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। सो डेल्टा डायलेट द पीपल इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम may contribute to the onset of which of the following, अल्जाइमर डिजीज़ में आप देखते हैं बॉडी में एल्यूमिनियम कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उससे हम एसोसिएट करते हैं कि हो सकता है कि आपके पास हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम से अल्जाइमर डिजीज़ का ऑनसेट होता हो। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। टेस्टोस्टेरोन इज़ प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, तो इंटरस्टिशियल सेल्स आपके पास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ ओसाइट रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन इज, ओव्यूलेशन में आपके पास सेकेंडरी ओसाइट होता है ना, सेकेंडरी ओसाइट आपके पास क्या होता है, मेटाफेज 2 में रुका हुआ होता है, अभी उसकी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, वो मेटाफेज 2 में स्टॉप हुआ है। मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल से एग रिलीज हो गया, येलो ग्लैंडुलर ओव्यूलेशन यानी हो गई, येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, उसे आप क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ग्लैंडुलर इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसका फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन को क्या करना, रिलीज करवाना। नेक्स्ट इज ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल कौन स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका नाम ही बता रहा है कि वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और आगे भी, ठीक है। FSH ने क्या करना है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना है, बीटा इज द राइट ऑप्शन। कॉजेटिव एजेंट ऑफ STD दैट अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, सो दैट इज गोनेरिया, ठीक है, और गोनेरिया का पॉजिटिव एजेंट आपके पास दैट इज नेसेरिया गोनेरिया, चार्ली इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर होल्ड द बोन्स टुगेदर, तो बोन्स को कौन होल्ड करता है, दैट इज लिगामेंट, ठीक है, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट, तो बॉडी का मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इज योर हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स, उसको आप कहते हैं सार्कोमियर, ठीक है। दीज आर द हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ मसल, ठीक है, सार्कोमियर। व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन देन दैट एनर्जी कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय डैश, अच्छा आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो आप उसको किस तरह कर सकते हो, सेकेंडरी सोर्स आप एज अ सेकेंडरी सोर्स आप यूज़ कर सकते हो फॉस्फोक्रेटीन को, बीटा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आफ्टर ग्लूकोज फॉस्फोक्रेटीन सर्व एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टीरॉइड हार्मोन, तो आपके पास आ गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और आपके पास जितने एल्डोस्टेरोन हैं, ये एल्डोस्टेरोन आ गया, ये आपके पास स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इंक्लूड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी आपके पास गोनेडोट्रॉफिन्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। आपके पास गोनेडोट्रॉफिन्स में क्या आ जाते हैं, गोनेडोट्रॉफिन हार्मोन्स यूँ लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाते हैं FSH, देन LH एंड प्रोलैक्टिन भी, सो आपके पास बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। ओवर एक्टिविटी ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टिकल हार्मोन की ओवर एक्टिविटी से आपके पास क्या हो जाएगा, कुशिंग डिजीज़, अंडर एक्टिविटी से एडिसन डिजीज़, ठीक है। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी रिकग्नाइज द एंटीजन ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, तो उसका जो वेरिएबल पार्ट होता है ना वो रिकग्नाइज करता है किसको, एंटीजन को ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज बेसिक इन नेचर, तो लाइसिन आपके पास बेसिक होता है इन नेचर, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ज़्विटर का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, तो मैं यहाँ ज़्विटर आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, लेट मी यूज इट फर्स्ट, ठीक है। ज़्विटर इस तरह ड्रॉ होता है, इट इज़ कार्बन C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, देन इट इज़ H2N
एंड यहाँ पे H है, यहाँ पे R है, दिस इज़ योर अमाइनो एसिड, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रोटॉन इधर चला जाएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को इरेज कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ H2 की जगह H3N हो जाएगा और N के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, दिस इज़ अ ज्विटर आयन, ठीक है। तो आप देख लें ऑप्शन बी में यही स्ट्रक्चर गिवन है, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज पोसेस्ड बाय नियॉन, ठीक है। आपने बताना है नियॉन और किसकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो हम यूँ ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ हीलियम लाई PBC न्यूज़ OF नेटवर्क, ठीक है, एंड हाँ लीने, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपके पास उसकी नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। सो Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव इज़ द राइट ऑप्शन, डेल्टा, ठीक है। विच ऑफ द 4 ऑर्बिटल्स SP D एंड F, ठीक है, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, करेक्ट ऑर्डर आपने उनका लिखना है इंक्रीजिंग एनर्जी का, ठीक है। सो S की सबसे कम एनर्जी है, देन कम्स P, देन D, देन F, ठीक है। पीछे आप 4 लगा दो, 2 लगा दो, ठीक है, तो 4 4 4 4 सबके पीछे लगा दो, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन अल्फ़ा, ठीक है। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या है, पहले तो ये पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ हम कहते हैं प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रेशर और 1/v का ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये बात याद रखना, दिस इज़ 1/v नॉट v, ठीक है। P और v का आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, P एंड v का इन्वर्स रिलेशन है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है। इस वजह से इन दोनों का ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगा, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन अदर्स, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, ठीक है। बट हम फिर भी कहते हैं कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है दैन HF, क्योंकि वाटर में आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू HF, लेकिन बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके पास HF की ज़्यादा होती है, देन कम्स OH, ठीक है, और NH की सबसे कम होती है इन तीनों में, ठीक है। व्हेन द चेंज इन कंसनट्रेशन आपके पास इतनी आ गई एंड द टाइम चेंज इज़ 10 सेकेंड्स, रेट ऑफ द रिएक्शन होता है चेंज इन कंसनट्रेशन पर यूनिट टाइम, 6 × 10⁻⁻⁴ मोल पर dm³, मोल को मैं m से लिख रही हूँ, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। एंड 10 सेकेंड से आप इसे डिवाइड कर दें, ये 10 ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 6 × 10⁻⁵ मोल पर dm³ सेकेंड, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज़ डेल्टा, ठीक है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रिएक्शन ये अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। दिस रिएक्शन इज़ गिवन एज, अब आपने क्या करना है, द रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई करनी है, डेल्टा H नेगेटिव है, तो रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है। मोर प्रोडक्ट फॉर्म तब होगा जब आप टेम्परेचर लो करोगे, ठीक है। जब टेम्परेचर लो करोगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट, ठीक है। सो रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। 3 हाइड्रोकार्बन आपको गिवन है, बेंजीन है, नेफ्थलीन है एंड एंथ्रासीन है। बेंजीन में एक बेंजीन रिंग है, नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग है, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग है, ये आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आपके पास क्या आ जाते हैं, आपके पास जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ये आ जाते हैं, ठीक है। एंड ए साइक्लिक तो आपके पास स्ट्रेट या ब्रांच चेन्स होते हैं, वो आपके पास साइकिल्स फॉर्म ही नहीं कर रहे होते, ठीक है। सो अल्फा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज़ द राइट ऑप्शन। आयुपैक नेम आपने इसका बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिख लेती हूँ, देन विल डिस्कस द आयुपैक नेम ऑफ इट, ठीक है। सो इट इज़ H3CCH, यहाँ पे है CH3 CH2 एंड Cl, ठीक है। सो आप इस कार्बन को कार्बन 1 कह दो, इसको 2 कह दो और इसको 3 कह दो, ठीक है। सो कार्बन 1 के साथ क्लोरीन अटैच है, आप कहेंगे 1 क्लोरो, 2 के साथ अटैच है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो आप कहोगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल, अब यहाँ से कार्बन 1 2 3 मीथ ईथ प्रोप, ठीक है। सो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज द अर्लीस्ट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, तो फिनोल को यूज़ किया जाता था अर्ली टाइम में एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट आपसे डिस्टिंग्विश कर लोगे, मीथेनॉल विल नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, इथेनॉल देगा, ठीक है। इथेनॉल टेस्ट में आपके पास येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे ऑफ ट्राई आइडोफ मीथेन आइडोफॉर्म के, ठीक है। मीथेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। सो ये इसका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट, तो टॉलेंस रिएजेंट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर इन NaCl 6 होता है,
ठीक है। क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर इन NaCl6 होता है, दोनों की रेशो 1:1 आती है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl इज 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। जब क्लोराइड आयन बन गया यानी उसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अब आपके पास 7 + 1 हो जाएंगे, दैट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना उसका। सो आप उसके आउटर मोस्ट शेल में उसने पूछा है, सो दे आर गोइंग टू बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ड्यूरिंग वेस्पर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल आर इन द ऑर्डर, सबसे ज़्यादा होती हैं लोन पेयर रिपल्शन, देन कम्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ रिएक्टेंट्स हैव हाई एनर्जी दैन प्रोडक्ट्स इन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई होती है, तभी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास क्या होती है, रिलीज़ होती है, ठीक है। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। आप इसे ग्राफ से इस तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो रिएक्टेंट्स की हाई एनर्जी होती है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही हो, यू कॉल दैट रिएक्शन अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो 2Na + Cl2 गिव्स यू 2NaCl, चार्ली आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। पहले आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या था सोडियम का, यूँ हम लिख के देखते हैं, हम कहते हैं Na उसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0 + Cl उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर था 0, आपके पास क्या बन गया, NaCl बन गया, Na-1 Cl-1 हो गया, Na + 1, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज़ हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन नंबर, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। आप उसे क्या कहते हो, यानी आपके पास दैट इज़ एन एसिड, ठीक है। जब आप वाटर में डिजॉल्व होकर आपको H+ आयंस दे, दैट इज़ एन एसिड, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन बिल्कुल भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, सच अ रिएक्शन इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अलॉन्ग अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर हम अलॉन्ग अ पीरियड बात करें, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। रेडियस आपके पास क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। नंबर ऑफ शेल्स आपके पास क्या हो रहे हैं, सेम रह रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेल्स आपके पास क्या हैं, सेम रह रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। और जो आपके पास जो प्रोटॉन नंबर है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आपके पास शेल्स क्या करें, डिक्रीज़ करें, ठीक है। सो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, इस वजह से आपके पास शेल्स सेम रह रहे हैं, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब जो प्रोटॉन्स हैं दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स विद मोर फोर्स, ठीक है। सो एटॉमिक रेडियस आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज़ अ पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2, उसका मोलर मास आपके पास 28,000 ग्राम पर मोल है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या होगा, आपने ये नहीं पता ना मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ऑप्शंस देखो, वो आपसे पूछ रहा है 200 टाइम्स दैट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, 100 टाइम्स दैट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला का अगर आप निकाल लें CH2, तो कार्बन 12 होता है, +2 कर देंगे तो आपके पास 14 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, आपने कर देना है 28,000 को डिवाइड कर देना है 14 से, तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, सो 2000 आपके पास आंसर आ जाएगा, 2000 टाइम्स दैट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस, तो आइस के एक मोल में आपके पास कितने ग्राम होते हैं, 18 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 मोल में हम कहते हैं 18 ग्राम है वाटर, ठीक है। अब 0.5 मोल होगा तो आपके पास कितना होगा, 9 ग्राम, ठीक है। 9 का 18 का हाफ़ किया तो यहाँ 1 का भी हाफ़ कर लो, ठीक है। सो 0.5 मोल में आपके पास एवोगैड्रो नंबर का भी हाफ़ कर लो, उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 3 × 10⁻23 मोल्स, ठीक है, आपके पास मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। आइस इज़ लेस डेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में आपके पास आइस क्या होती है, दैट इज़ लेस डेंस देन वाटर, इट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वन विच शोज़ मार्क डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अबव ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। आपको आइडियल मार्क से डेविएशन ज़्यादा वो शो करेगी द वन
एज वन ऑफ द assumption ऑफ आइडियल गैस इज़ द आइडियल गैसेज हैव निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जिसका हायर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो ज़्यादा डेविएशन शो करेगी, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्पीशी आपके पास AS है, उसमें देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आपके पास 3 का आ रहा है, प्रोटॉन ज़्यादा है तो +3 आप लिखेंगे, ठीक है, AS +3। GA में देखें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस आपके पास आ रहा है 3 का, और प्रोटॉन्स आपके पास ज़्यादा हैं, सो यू यूज़ +3 अगैन, ठीक है। एंड कैल्शियम CA में आप देखें 20-20 है, डिफरेंस दोनों का 0 है, ठीक है। सो आपके पास ना प्लस साइन होगा ना नेगेटिव साइन होगा, दिस इज़ अ न्यूट्रल, दिस इज़ एन एटम नॉट एन आयन, ठीक है। सो चार्ली आपके पास इज द राइट ऑप्शन, AS +3, GA +3 एंड CA, ठीक है। इफ़ चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ये इतनी गिवन है, व्हाट विल बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो आपने मास फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, wait a second, you will do charge to mass value आपको गिवन है 1.75 × 10⁻11, ठीक है, इज इक्वल्स टू चार्ज आपके पास कितना है 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय मास, आपने मास फाइंड करनी है, यू विल डू m इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19, इसको डिवाइड कर दो 1.75 × 10⁻11 से, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.9 × 10⁻29, ठीक है। और आप इसको इस तरह लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.1 × 10⁻28, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ when two partially filled atomic orbitals overlap in such a way that their probability of finding the electron is maximum around the line joining the two nuclei, ठीक है, तो वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। टू partially filled atomic orbital overlap करते हैं और probability of finding the electron maximum होती है between the line joining the two electrons, so that is a sigma bond, ठीक है। SO4-2 ऑक्सीडेशन नंबर आपने बताना है सल्फ़र का, ठीक है। सो हम इसको फाइंड कर लेते हैं, just give me a second to erase all this, ठीक है। सो इट इज़ SO4-2, ठीक है। तो सल्फ़र का आपने फाइंड करना है, S ऐसे उसका X लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इज इक्वल्स टू X + 4 × -2, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 आइटम्स हैं ऑक्सीजन के, इज इक्वल्स टू -2, टोटल चार्ज -2 है, तो आप इज इक्वल्स टू -2 लिख लोगे, ठीक है। X - 4 2 = 8, माइनस इस वजह से लिखा ये माइनस है, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2, X इज इक्वल्स टू -2 + 8, सो X इज इक्वल्स टू 6 आपके पास आ जाएगा, +6, ठीक है। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। कॉइनेज मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, उनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इस वजह से दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। Next is for the reaction 2NO + O2 gives you 2NO2. The rate of the reaction for the forward reaction is, rate of the reaction आपके पास NO2 raised to the power 2 है, 2 इसके पीछे कोएफिशिएंट देखो 2 है, ठीक है, और O2 सिंगल, तो रेट इज इक्वल टू K NO2 raised to the power 2 and O2 है, ठीक है। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ये आपके पास कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, BBC न्यूज़ OF नेटवर्क, ठीक है। सो आप यहाँ से देखें, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो सबसे ज़्यादा आपकी नियॉन की है, देन आपके पास ऑप्शंस में नाइट्रोजन है, ठीक है, देन नाइट्रोजन की है, देन कार्बन की, एंड देन बोरॉन की, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज इज यूज इन प्रोवाइडिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग, तो हीलियम आपके पास वेल्डिंग में हेल्प करता है, इट प्रोवाइड्स एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैंगनीज आपने बताना है, तो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है Mn, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास होती है, इट इज़ मैंगनीज़ की होती है आर्गॉन, इसमें आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो गए, ठीक है, 3d5 4s2 होती है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखें आर्गॉन 3d5 4s2 आपके पास जहाँ हो अल्फ़ा में आ रही है, ठीक है। 3d5 में आप देखें 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने अकोमोडेट करना है, 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल आप ऐसे अप्लाई करेंगे, सो अल्फा इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल रिएक्शन फॉर द अमोनिया फॉर्मेशन बाय हेबर्स प्रोसेस, तो N2 + 3H2 gives you 2NH3, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ईच अदर, तो सिस ट्रांस में आप देखें अल्फा में आप यहाँ पे देखें, यहाँ बल्कि ग्रुप्स एक साइड पे अटैच हैं, हाइड्रोजन एक साइड पे है, ठीक है, यहाँ पे इसका ये सिस वाला है, ठीक है। ट्रांस में आप देखें हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे अटैच हैं, हाइड्रोजन भी ऑपोजिट साइड पे, दिस इज ट्रांस, ठीक है, सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। चार्ली में आप देखें
यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स पहले सेम साइड पे अटैच हैं, दूसरे में भी बल्कि ग्रुप सेम साइड पे अटैच है, तो ये सिस ही बन रहा है, ट्रांस तो बनाया नहीं, ठीक है। बीटा में देखें बल्कि ग्रुप सेम साइड पे अटैच हैं, फिर आपने CH3 हटा दिया, ठीक है, आपने तीनों जगह हाइड्रोजन लिया है, तो यहाँ पे तो आपके पास ये चीज़ जो आपके पास इसमें दूसरा है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता। एंड अगर आप डेल्टा में देखें सो आपने बल्कि ग्रुप सेम साइड पे अटैच किए, फिर अगेन आपने बल्कि ग्रुप सेम साइड पे, और आपने बल्कि ग्रुप्स भी चेंज कर दिए उसके, तो फिर भी आपने सेम साइड पे अटैच किए रखे, तो दिस इज़ गलत, ठीक है। अल्फ़ा आपके पास राइट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कीटोन, तो पहला वाला आपके पास है ईथर, ठीक है। बीटा आपके पास कीटोन आ गया, बीटा में आप इसको यूँ लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, ऐसे करके C डबल बॉन्ड O, ठीक है, दिस इज़ अ कीटोन। चार्ली में आप देखें दिस इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेल्टा इज़ अ एल्डिहाइड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिक रिएजेंट टू अनसिमेट्रिक अल्कीन, इट इज़ गवर्नड बाय मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। इथाइलिन ग्लाइकोल आर यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन, दिस इज़ अ फैक्ट। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश बाय ल्यूकस टेस्ट आप करते हैं, इसमें आप ZnCl2 एंड ZnCl2 एंड HCl यूज़ करते हैं, ठीक है। जो टर्शियरी अल्कोहल्स होती हैं दे इमीडिएटली गिव द टेस्ट, 5 to 10 मिनट्स में आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं एंड ऑन हीटिंग प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं, सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन, ल्यूकस टेस्ट। इथाइल ब्यूटाइरेट एंड ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट आर एस्टर्स विद द फ्लेवर ऑफ, इनका पाइनएप्पल फ्लेवर होता है, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ये आपको फ्लेवर्स याद करने हैं, ठीक है। फार्मूला फॉर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल इज़, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, पहले में आप देखें फिनोल ही नहीं है, हाइड्रोक्सल ग्रुप ही अटैच नहीं है, ठीक है, तो फिनोल बन ही नहीं सका, ये तो एलिमिनेट कर दो। दूसरे में देखो आपके पास 2,4,6 पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच नहीं है, ठीक है, आपके पास एक पोजीशन एक कार्बन छोड़ के अटैच होते तो 2,4,6 पोजीशन बनती, ये आपके पास कंटिन्यूसली अटैच है तो 2,4,6 बन ही नहीं सकती पोजीशन, ठीक है। बीटा चार्ली अभी हम देख रहे थे, ठीक है, फिर बीटा को देखो हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है, फिर 2,4,6 पे अटैच है, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। एंड अगर डेल्टा में भी देखें तो ब्रोमीन आपके पास कंसेक्टिवली अटैच है, एक हाइड्रोक्सल के साथ अटैच हुआ है, ठीक है, तो उन दो ब्रोमीन में एक कार्बन का डिफरेंस है, ठीक है, सो बीटा इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। फर्दर रिएक्शन आपने क्या करना है, आप बेस के साथ HCN का रिएक्शन करवा रहे हो, अब आप कार्बन चेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप प्रोडक्ट में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कैसे हो रहे हैं, एक सेंट्रल कार्बन है, एक ऊपर CH3 वाला कार्बन है एंड 2 कार्बन नीचे हैं, C2H5 है, 4 कार्बन हो गए। अब आप 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड यहाँ से देखो कौन सा है, देखो बीटा तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल की रिएक्शन देते नहीं हैं, ठीक है, और चार्ली आपके पास आ गया कीटोन और डेल्टा आपके पास आ गया एल्डिहाइड। अब उनमें से आपने कार्बन एटम्स मैच करने, 4 कार्बन एटम्स किस में है, तो अल्फ़ा में आपके पास 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। चार्ली में देखें 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, डेल्टा में देखें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, बट दिस इज़ एन एल्डिहाइड, ठीक है। सो ये आपके पास कीटोन 4 कार्बन वाला कीटोन ये रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। HCN रिएक्ट विद कीटोन, 2 न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, द हाइड्रोजन फ्रॉम HCN adds to 0 in C double bond O, adds to oxygen in C double bond O to form COH bond, और CN adds to carbon to form CCN bond, ठीक है। सो कीटोन आपके पास ऑप्शन ए में आ रही है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अमाइनो एसिड विच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, वो आपके पास एसेंशियल होते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी बॉडी में खुद प्रिपेयर नहीं हो रही वो एसेंशियल है, जो चीज़ बॉडी प्रिपेयर कर रही है वो तो नॉन एसेंशियल होगी ना, वो आपको बाहर से खाने की क्या ज़रूरत है। इंडिकेट द साइक्लिक अमाइनो एसिड इन द फॉलोइंग, तो प्रोलीन आपके पास साइक्लिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। हेलो अमाइन इज़ नॉट एन अमाइनो एसिड बट इट इज़ रादर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइन एंड हेलोजन ग्रुप, ठीक है। सिस्टीन एंड सीरीन एंड प्रोलीन आर नॉट शोन एक्चुअली हियर, बट आपके पास इसमें प्रोलीन में आपके पास रिंग स्ट्रक्चर होता है, बाकी सिस्टीन एंड सीरीन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड में आपने जो अमाइनो एसिड है हमने इतनी दफ़ा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। उसका जो R ग्रुप होता है ना उसके साथ आप क्या अटैच करेंगे, आपके पास ग्लूटामिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो आप देखें अल्फ़ा आपके पास राइट ऑप्शन है, आपने R ग्रुप की जगह अटैच कर दिया CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। सो ये आपके पास इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, बाकी सारे गलत ऑप्शन है, अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अल्फ़ा इज़ ग्लूटामिक एसिड, बीटा इज़ नॉट अ कॉमन अमाइनो एसिड, चार्ली ग्लाइसिन है एंड डेल्टा क्या है, एनिलीन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फैट्स आर टाइप ऑफ लिपिड कॉल्ड ग्लिसराइड्स, ठीक है, द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर द एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो दैट इज़ प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, ठीक है, यानी
एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. फैटी एसिड्स आर ऑल अल्केन्स बट दोज ऑप्शंस डू नॉट कंटेन ईन बट ईन, ठीक है. 3 अल्कोहल्स आर अटैच टू इट. अब देखो अल्फ़ा में आपके पास ईन आ रहा है, चार्ली में भी ईन आ रहा है, ठीक है. सो आपके पास बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल. डेल्टा में देखो 1 2 3 डाईओल लिखा हुआ है. जब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हैं तो डाईओल तो नहीं हो सकता ना, ट्राईओल होगा. तो डेल्टा में ये एरर है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन आरएनए. तो थायमीन आरएनए में नहीं होता, थायमीन की जगह यूरासिल होता है आरएनए के अंदर. कोलेजन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन डैश थ्रू आउट द बॉडी. तो आपके पास टेंडन्स के अंदर, टेंडन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन होता है, ठीक है. सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. Collagen consists of amino acid bound together to form a triple helix of elongated fibril known as collagen helix. ठीक है, this is mostly found in connective tissue such as cartilage, bones, tendons, ligaments and skin. ठीक है. Ka values different organic compounds की given है, आपने order of acid strength बतानी है, ठीक है. So आप यहाँ से देख लें CCl3 यानी जिसकी के ए वैल्यू ज़्यादा है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है. के ए वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ. पी के ए वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू एंड एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है. सो जिसकी के ए वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा एसिड है. सो यहाँ पे आपने इसको इस तरह अटैच वो कर दिया, ठीक है. दिस सजेस्ट दैट ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फॉलो बाय ड्राईक्लोरो देन क्लोरो एंड देन एसिडिक एसिड. ऑर्डर is based upon the increasing number of chlorine atoms attached to carboxyl group which increases the electron withdrawing effect enhancing the acidity. Therefore आपके पास this is the right option. Next is इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच वन इज़ अल्फ़ा कार्बन. तो कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन नहीं कहते हैं. कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिल ग्रुप उसको आप अल्फ़ा कार्बन कहते हैं. तो कार्बन 2 इज़ गोइंग टू बी द अल्फ़ा कार्बन नॉट द वन. दिस इज़ मैंशनड इन द बुक, ठीक है. स्पेसिफिक सब्सटेंस मेटाबोलाइट दैट फिट्स ऑन द एंजाइम सरफेस एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट फिट करता है एक्टिव साइड पे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाली बात ना लिखी भी होती तो आप ये भी कह सकते थे इनहिबिटर भी हो सकता है, ठीक है. बट दैट इज़ एन ऑप्शन एंड दैट वाजंट मेंशन्ड इन द एमसीक्यू आइदर. सो सबस्ट्रेट इज़ द राइट ऑप्शन. हीमोग्लोबिन आपके पास एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है. वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ 9.108 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, ठीक है. किलोग्राम में आप लिखेंगे तो आंसर आपके पास अलग आएगा. 31 32 28 29 30 31 -31 ग्राम आपके पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम. बस उसने यहाँ ग्राम लिखा हुआ है. सो डू चेक द यूनिट बिफोर मार्किंग एनीथिंग. चार्ली आप लोगों ने अगर किया सो यू गाइस डिड इट रॉन्ग, ठीक है. किलोग्राम नहीं पूछा, ग्राम में पूछा है. इन द रिएक्शन आपके पास रिएक्शन गिवन है. द इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम द जो इलेक्ट्रॉन आपके पास एटॉमिक नंबर दिस इज़ अ बीटा डीके, ठीक है. तो बीटा डीके में आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो गया है 1 से, मास नंबर आपके पास सेम ही रहा है. आप देखें थोरियम से आपके पास एक वाई एलिमेंट फॉर्म हुआ है, 92 से 91 हुआ है. इसका मतलब आपके पास एटॉमिक नंबर है वो क्या हुआ है Z+1 एंड ए आपके पास ऐसे ही. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट इज़ कोबाल्ट 60 इज़ यूज इन मेडिसिन एंड इज़ एन इंटेंस सोर्स ऑफ. तो इट इज़ गैमा, यानी कोबाल्ट 60 में हम कहते हैं ना कोबाल्ट आपके पास गैमा रेज इमिट करता है. आपके पास कोबाल्ट हाईली मतलब क्या होता है अनस्टेबल है, ठीक है. सो वो आपके पास एक्साइटेड स्टेट में होता है, आप री एक्साइट उसको करते हो बाय इमिटिंग द गैमा रेज. सो इट इज़ यूज इन मेडिसिन एंड इट इज़ इंटेंस सोर्स ऑफ गैमा रेज. व्हेन टू स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव्स सुपर इम्पोज तो वो आपके पास बीट्स फॉर्म करते हैं. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. बॉडी ऑफ वेट उसका 20 न्यूटन है. when the elevator is descended with acceleration 0.1 meter per second square then the value of tension कितनी होगी, ठीक है. तो आपने टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है. सो दैट इज़ गोइंग टू बी टेंशन इज इक्वल्स टू एफ माइनस, आप क्या कह देंगे, आप कहेंगे टेंशन इज इक्वल्स टू एफ माइनस ए, ठीक है. या आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, आप इसको माइनस कर दो कि एम ए माइनस एम ए होता है ना. T is equals to ma minus ma where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity, a is the acceleration of the elevator. ठीक है, आप वैल्यूज़ पुट करोगे. f फोर्स आपके पास उसने गिवन है, f इज़ इक्वल्स टू w इज़ इक्वल्स टू एम जी होता है, ठीक है. तो मैं एम जी लिखूँ यहाँ पे या मैं फोर्स लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है. या वेट वो भी एक ही बात है. क्वेश्चन में वेट गिवन है, फार्मूला में एम जी है, ठीक है. और मैं एफ़ लिख रही हूँ, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, एक ही बात है, ठीक है. सो 20 माइनस 0.1 आप कर देंगे. सो दैट इज़ गोइंग टू बी 19.8 न्यूटन,
ठीक है, टेंशन आपके पास 19.8 न्यूटन आ जाएगी. When sodium 24 has half life of 15 hours and it is used in medicine to estimate plasma blood volume. ठीक है, सो आपके पास ये ब्लड वॉल्यूम एस्टिमेट कर रहा होता है. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन बेस यूनिट है, तो टेम्परेचर का यूनिट आपके पास बेस यूनिट में क्या होता है, केल्विन होता है. ये आपके पास एसआई यूनिट भी यही है. ठीक है, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन. 2 samples of gases 1 and 2 are taken at same temperature and pressure but the ratio of number of volume is V1 by V2 आपके पास 2/3 है. What is the ratio of number of moles of the given sample? तो volume is directly proportional to number of moles. ठीक है, सो आपके पास वॉल्यूम V1 by V2 2/3 है, तो N1 by N2 भी क्या होगा, 2/3 होगा. डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हेन द रेट ऑफ द गैस चेंजेस विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर द गैस इज सेड टू बी. चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर सेम है, दैट इज़ आइसोथर्मल. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस. अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. व्हेन 273 Kelvin on the Celsius scale of temperature. What is 273 Kelvin on Celsius scale? तो 273 Celsius scale में आप करेंगे, so that is going to be -0.15 Celsius. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 Kelvin. ठीक है, जब आप इसे कन्वर्ट करोगे या फिर आप यूँ कह दो, ठीक है, तो आपके पास चार्ली आंसर आ जाएगा. ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर दो इस तरह कि टी केल्विन -273 टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू टी केल्विन में -273.15. ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.15 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फाइंड द ऑड वन. मदर, सिस्टर, ऑन्ट, मेड. तो मेड इज़ द ऑड वन. ठीक है, बाकी सारे रिलेटिव्स हैं, मेड इज़ नॉट अ रिलेटिव. इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ कंट्री एन एक्यूट फेमिन हैव अपीयर्ड. ठीक है, मेजर फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर एंड फूड शुड बी प्रोवाइडेड स्ट्रेट अवे इन दैट एरिया. येस. ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट शुड बी. पैसे का क्या करेंगे, ठीक है, फेमिन आया हुआ है, कहत पड़ गया है. ठीक है, दे नीड फूड एंड वाटर, नॉट द मनी. ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज़ द वाइज अप्रोच. ओनली 1 फॉलोज. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर. तो इंडेक्स, ग्लोसरी, चैप्टर ये सारे बुक के अंदर होते हैं, बट बुक के अंदर नहीं होती. बुक डजंट बिलोंग हियर. ठीक है, द डायलॉग बिटवीन जिन्ना एंड गांधी फेल्ड. इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ट्राई टू ज्वाइन हैंड्स सो दे विल बी यूनाइटेड. ठीक है, तो गांधी और जिन्ना के दरमियान में डायलॉग फेल हुए, दिस इज़ एन अफेक्ट. कॉज क्या था हमें नहीं बताया. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने हैंड्स ज्वाइन करने की कोशिश की. दे विल बी ट्राई टू जॉइन हैंड सो दे विल बी यूनाइटेड. ठीक है, ये इसकी बिल्कुल पहली स्टेटमेंट की कॉज नहीं है. ठीक है, बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट्स. उसका भी हमें सेकंड स्टेटमेंट का भी कॉज नहीं पता. सो बोथ हैव इंडिपेंडेंट कॉजेज, बोथ आर इफेक्ट्स. ठीक है, एन इंटीरियर मिनिस्टर हैज़ फाउंड द ओनर ऑफ एन एसेट मोर देन द स्टेटेड इनकम. द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑर्डर्ड ऑल द मिनिस्टर टू अनवील देयर एसेट्स. ठीक है, तो पहला कॉज है, दूसरा इफेक्ट है. एक कि आपके पास एसेट्स ज़्यादा निकले, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को वो हुआ कि औरों के भी देख लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट सेकेंड इज़ द कॉज. अच्छा नहीं हुआ क्या, पहले प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया टू ऑल द मिनिस्टर टू अनवील देयर एसेट्स. उसके रिज़ल्ट में उन्हें पता चला कि एक जो मिनिस्टर है उसकी एसेट्स ज़्यादा हैं. ठीक है, अचानक से वैसे कैसे पता चल गया. ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड 1 उसका क्या है, इफेक्ट है. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. In each of the following question, a statement is given followed by 2 conclusions. Please do not write for me, I may be late. Start taking lunch as soon as the guest arrive. ठीक है, a message from the director of the company to his office manager. Assumption क्या है, keeping guest waiting is not desirable. ठीक है, and lunch may not be ready in time. तो lunch ready in time वाला तो कोई बात की नहीं ना ऊपर. यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि गेस्ट को वेट कराना नहीं अच्छी बात. ठीक है, सो तभी जो आपके पास डायरेक्टर है वो कह रहा है डोंट वेट फॉर मी, स्टार्ट द लंच एज सून एज द गेस्ट अराइव. ठीक है, सो अल्फा ओनली 1 assumption is implicit is the right option. When the change on alpha particle emitted through what is the charge on alpha particle? तो alpha particle is helium nucleus. ठीक है, तो इसके ऊपर हीलियम न्यूक्लियस है. हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन से कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, तो हीलियम न्यूक्लियस में आपके पास इसका चार्ज क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव. ठीक है, 2 E पॉजिटिव आपके पास, पॉजिटिव 2 E चार्ज आएगा. डेल्टा. हाफ लाइफ ऑफ सोडियम 24-15 आवर्स है, यू हैव टू रिमेंबर इट. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज. एब्जॉर्ब डोज आपके पास होता है दैट इज़ एनर्जी पर यूनिट मास. ठीक है, सो इट इज़ जाउल पर किलोग्राम. तो इसको आप लिखते हैं एज 1 ग्रे. ठीक है, ये इसका यूनिट है. बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. रेडियो एक्टिव फिनोमेना ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेयर अल्फा डिविएट्स लेस देन बीटा. अल्फा कम डिविएट हुई है, बीटा ज़्यादा डिविएट हुआ है. विच इज़ द रीज़न फॉर दैट. अल्फा आपके पास ज़्यादा मैसिव है. ठीक है, बीटा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अल्फा आपके पास हीलियम न्यूक्लियस है. ठीक है, अल्फा इज़ हैवियर पार्टिकल, उसका मैस ज़्यादा है. चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, इस वजह से उसकी डिविएशन कम हुई है.
रेडियो आइसोटोप 131 आपके पास थायराइड कैंसर के लिए थायराइड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज ऑब्जर्व ड्यू टू बीटा इमिशन ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी. एटॉमिक मास सेम रहता है, नंबर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है बाय 1. ठीक है, सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 10 seconds. विच इक्वेशन रोटेट्स इट्स एक्सेलरेशन. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, हाँ हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू माइनस, सॉरी एक्स है यहाँ पे. ठीक है, माइनस ओमेगा स्केयर एक्स हो जाता है. ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आपके पास होती है, ओमेगा इज़ इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी. ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी होता है. आपने वैल्यूज पुट कर देनी है. आप करेंगे ए इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाय टाइम आपके पास कितना है 10 है होल स्केयर एक्स. ठीक है, तो ये आपके पास कहाँ आ रहा है, चार्ली. ऑप्शन इज़ द राइट वन. When the length of a simple pendulum is doubled, find the ratio of new frequency to the old one. ठीक है, तो लेंथ आपने डबल करनी है, फ्रीक्वेंसी का आप रेशो लेंगे. ठीक है, सो आप इसको इस तरह सॉल्व करें कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं टू ईच अदर. ठीक है, सो आप करेंगे एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट जी बाई एल. ठीक है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एल लेंथ है. तो लेंथ जब आप डबल कर दोगे तो न्यू लेंथ 2l हो जाएगी. तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इट इज़ गोइंग टू बी एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट जी बाय 2l हो जाएगी. ठीक है, और टू फाइंड द रेशो, इन दोनों का जब आप रेशो लोगे तो आप एफ प्राइम को डिवाइड कर दोगे एफ से, 1/2 पाई स्क्वायर रूट जी बाई एल से डिवाइड कर दोगे तो 1/2 पाई कट गया, स्क्वायर रूट जी भी यहाँ कट जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी, आपके पास क्या रह जाएगा, एफ प्राइम बाई एफ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाय 2l. ठीक है, आपके पास ये रह जाएगा. सो एल एल काट दें तो आपके पास रह जाएगा 1/√2. ठीक है, सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस. ठीक है, 1/√2 डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. लेट मी चेक हियर. हाँ देखो यहाँ एल, अब आप लोग सोचो कि ऊपर कैसे आया, तो 2l डिनोमिनेटर में था ना, ये आपके पास डिनोमिनेटर में था. जो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगा तो l ऊपर आ जाएगा और 2l नीचे आ जाएगा. ठीक है, in the diagram below the displacement of an oscillating particle is plotted against the time. What does the length pr represent? तो pr is equals to हाफ द टाइम. ठीक है, ये आपके पास हाफ वेव लेंथ आ रही है, सो दैट इज़ इक्वल टू हाफ द टाइम. टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज़ द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ. ठीक है, 1 वेव लेंथ ट्रैवल करते हुए जो टाइम होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 वेव लेंथ. सिंस दिस वेव लेंथ इज़ हाफ वेव लेंथ है, जो टाइम होगा दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हाफ. Variation of amplitude with respect to time for an oscillation of an object is shown. Identify the oscillation. ठीक है, so this is an undamped oscillation. damped होती तो oscillations कम होती, वे time नहीं हो रही, so this is undamped. ठीक है, which of the factor what is the factor upon which change in internal energy of ideal gas depend? change in internal energy of ideal gas temperature पे depend कर रही है. ठीक है, तभी तो हम कहते हैं आइसोथर्मल में टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा टी 0 हो गया, इस वजह से इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गई और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गई. ठीक है, next is what will be the mathematical form of the first law of thermodynamics that is going to be. अच्छा, इस ग्राफ के लिए आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 है तो q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा. व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर चार्ज ऑन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट. एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू Q0V आ जाएगा. ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड, हम कह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, आपके पास कैपेसिटेंस गिवन है एंड पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है. ठीक है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, यू आर गोइंग टू यूज़ q इज़ इक्वल्स टू सी भी होता है. ठीक है, c इज़ एंड वी कन्वर्ट इनटू माइक्रोफैरेड डिवाइड, आप इसको इस तरह कर दोगे. ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द चार्ज स्टोर्ड, नॉट एनर्जी, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, माय बैड. उसने पूछा चार्ज स्टोर. ठीक है, सो आप ये फार्मूला लगेंगे q इज़ इक्वल्स टू सी वी. ठीक है, c आपके पास 0.005 फैरेड है एंड वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट है. ठीक है, सो आपने बस क्या करना है, यहाँ माइक्रोफैरेड को 5 माइक्रोफैरेड है ना, तो आपने माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट कर देना है फैरेड में. आप यूँ लिख देंगे 5 × 10⁻⁻⁶ इंटू
12 कर देंगे तो 12 5 आर 60 होता है, 60 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 60 माइक्रो कूलम, ठीक है. चार्ली इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. A solenoid is cut into two halves. Magnetic induction due to the same current in each half will be same as original, ठीक है. The next question is, what does CAT stands for in X-ray technology? It stands for computerized axial tomography. ठीक है, beta is the right option. In cloud chamber, the path of beta particle is thin, wavy, and longer. Charlie is the right option. Beta particle form thin and discontinuous tracts extending long in an erratic manner showing frequency deflections, ठीक है, जो wavy हो गया, ठीक है. So आपके पास Charlie is the right option. Among three types of radioactive radiations, which one have strongest penetration power? तो gamma ray की penetration power strongest होती है, ठीक है. alpha particles की minimum penetration power होती है, क्योंकि gamma जो particles होते हैं they are neutral, ठीक है, तो इस वजह से उनकी penetration power क्या होती है, strongest होती है. emission of alpha decay from a radioactive substance की वजह से आपके पास atomic mass जो होती है 4 से decrease हो जाती है, and atomic number 2 से क्या हो जाता है, decrease हो जाता है. delta is the right option. Till joule of energy is absorbed by 10 gram of mass from a radioactive source. Absorbed dose आपके पास क्या होती है, that is energy absorbed divided by mass, ठीक है. So it is going to be 10 divided by joule is absorbed by 10 ग्राम mass, ठीक है. तो 10 ग्राम को आपने क्या कर देना है, 10 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, आपके पास 1000 ग्रे आ जाएगा, ठीक है. जब आप इसको कन्वर्ट करोगे दैट इज़ गोइंग टू बी 0.01, ठीक है. तो 10 डिवाइडेड बाई 0.01 किलोग्राम जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1000 ग्रे, ठीक है. नेक्स्ट इज़ isotope are those nuclei for an element which have, तो isotope में आपके पास same atomic number different mass number है. delta is the right option. emission of radiation from radioactive substance is independent. radiation emission का कोई ताल्लुक नहीं होता physical या chemical properties पे, ठीक है. तो आप temperature और pressure increase करो, जो मर्जी करो, that is independent of that, ठीक है. In a simple harmonic motion, the radius x naught, the velocity of a particle at any point is equals to alpha is the right option. V is equals to omega x naught square minus x square, ठीक है. alpha is the right option. What is the value of universal gas constant? तो delta आपके पास right option है, ये value है इसकी, ठीक है. The formula for electric field strength is E is equals to F by Q, where E is electric field strength and F is force, Q is charge. ऑप्शंस इसका यूनिट क्या है, कौन बता रहा है, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है. आप न्यूटन पर कूलम को कन्वर्ट करोगे बेस यूनिट्स में तो आपके पास आ जाएगा, लेट मी डू दैट फॉर यू गाइस, ठीक है. सो आपने कन्वर्ट करना है न्यूटन पर कूलम को, ठीक है. तो न्यूटन आपके पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कूलम आपके पास क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू IT, ठीक है. तो एम्पेयर एंड सेकेंड्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है. आप इसको करो सिंप्लीफाई, किलोग्राम मीटर पर एम्पेयर सेकेंड क्यूब, ठीक है. सो किलोग्राम मीटर सेकेंड -3 A -1, ठीक है. आप इसको यूँ लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर S -3 A -1, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ 100 किलोग्राम मैन स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर विच एक्सीडेंटली फॉल्स फ्रीली, ठीक है. वट विल बी द वेट ऑफ द मैन इन फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर. जब फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट तो उसका वेट 0 हो जाता है, ठीक है. बीइंग फ्रीली फॉल द मैन विल बी एट द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है. सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 9.8 मीटर. वट the frequency of a simple pendulum of length 9.8 meter will be, length आपके पास 9.8 मीटर गिवन है, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है. सो आप फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, टाइम का लगाते हैं, T इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट, लेंथ आपके पास 9.8 है, डिवाइडेड बाई G 9.8 वैल्यू इसकी पुट करें, ठीक है. सो टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट 1, सो टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है. टाइम इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, तो एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई हर्ट्स आपके पास इसका यूनिट होता है. सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. फूड बीइंग कुक्ड इन माइक्रोवेव oven is example of resonance. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम. तो टोटल एनर्जी आपके पास सेम रहती है. डेल्टा आपके पास रिप्रेजेंट इसे कर है. पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इंटर कन्वर्ट इनटू वन अनदर ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट ही रह रही होती है. इसे आप स्ट्रेट लाइन से शो करोगे, ठीक है. नेक्स्ट इज जनरल गैस इक्वेशन. PV इज इक्वल्स टू nRT, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेशन ऑफ n. तो n आपके पास क्या होता है, मैस पर मोलर मैस होता है, ठीक है. लेकिन आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स. ये वाला फार्मूला अगर आप देखो, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू एन इंटू एन ए, ठीक है। तो जब आप एन की वैल्यू फाइंड करोगे दैट इज गोइंग टू बी एन डिवाइडेड बाई एन ए, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपके पास ये एन की वैल्यू आ गई, बीटा इज द राइट ऑप्शन। फीचर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यहाँ स्ट्रेन और स्ट्रेस अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करोगे तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा, तो आपके पास आ जाएगा स्ट्रेन बाय स्ट्रेस। तो आपने स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करना है तो आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट, ठीक है। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ एमीटर एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। आपने एमीटर की रीडिंग बतानी है, V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फार्मूला आप लगा देंगे, ठीक है। आपके पास दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में अटैच हुई हुई हैं तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। सो 6 + 6 12 ओहम आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। V इज इक्वल्स टू आई आर आप लगाएंगे, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। आई आपने फाइंड करना है, वोल्टेज आपके पास 3 ओहम है, दिस इज़ नॉट द वोल्टेज, दिस इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है, सॉरी, एंड दिस इज़ नॉट रेजिस्टेंस, दिस वाज वोल्टेज, I did it wrong, ठीक है। let me erase it, ठीक है। I thought it was resistance लेकिन वो वोल्टेज थी, ठीक है। आपने क्या कर देना है, टोटल वोल्टेज आपके पास फिर भी 12 वोल्ट ही रहेगी, आपने दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू V बाई आर। वोल्टेज आपके पास कितनी है, दैट इज़ 12, आपने इसे डिवाइड कर देना है 3 ओहम से, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी 4 एम्पेयर। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 6 ohm are connected as shown in the diagram, ठीक है। बट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी के दरमियान की रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। तीनों रेजिस्टेंस अगर आप कोर्स देखो, दीज आर अटैच्ड इन पैरेलल नॉट इन सीरीज़, ठीक है। तीनों आपस में पैरेलल में अटैच हुए हैं। सो आपने जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, सो यू आर गोइंग टू डू व्हाट, R equivalent is equals to 1/6 plus 1/6 plus 1/6, ठीक है। सो 6 आप ले लें, 1 + 1 + 1, सो इट इज़ गोइंग टू बी 3/6, ठीक है। एंड 6 1 3 1 3 3 2 6, 1/R equivalent इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है। तो जब आप R equivalent करेंगे सो दैट इज़ गोइंग टू बी 2/1, ठीक है। फार्मूला होता है ना 1/R equivalent इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 अप टू सो ऑन, ठीक है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ ट्यूमर्स एंड इन्फ्लेम्ड टिश्यूज, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 3 parts of radioactive radiation are observed in the as shown in the figure, in the presence of electric field. Which type of radiation is shown in the path 1? path 1 आपके पास स्ट्रेट लाइन में जा रही है, डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज गोइंग टू बी gamma ray, ठीक है। चार्ज नहीं होती ना तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, चार्ली। What is the absorbed dose of a given sample of 2 किलोग्राम with the amount of energy 100 joule? तो absorbed dose का फार्मूला होता है absorbed energy पर यूनिट मास, ठीक है। सो आपने क्या कर देना है, आप कह देंगे 100 joule एनर्जी है पर यूनिट मास 2, सो दैट इज गोइंग टू बी 50 ग्रे, ठीक है। नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी इज यूज्ड अगेंस्ट टेटनस। टेटनस में एंटीसीडा देते हैं, एंटीसीडा इज पैसिव इम्यूनिटी, आपको एंटीबॉडीज आर्टिफिशियली बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स आर नेम्ड ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विद बोर्सा ऑफ फैब्रिसियस, बीटा इज द राइट ऑप्शन। इन द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, ठीक है, टू फॉर्म द अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। Next is if a resistor having resistance R is cut into 3 equal parts, ठीक है, then the equivalent of the parallel combination is, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट आपने फाइंड करना है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी R/9, ठीक है। चार्ली आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। आप कहेंगे R इज इक्वल्स टू R/3, तो आप 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है एंड जस्ट सॉल्व इट, तो आपके पास R/9 आंसर आ जाएगा। A bar of length L pivoted at O is acted by a force F at an angle theta with vertical line. What is the moment of force? आपने moment of force find करना है, that is going to be LF cos theta, ठीक है। LF cos theta, this option suggests that moment of force is LF cos theta. It is the correct answer. Moment of force also known as torque, calculated by multiplying the magnitude of force. मतलब अगर हम torque की बात करें तो torque का फार्मूला आपके पास क्या होता है, that is torque is equals to F R cos theta, ठीक है। सो आपके पास F को आपने किससे रिप्रेजेंट करें, बार ऑफ लेंथ L, ठीक है। तो आप यहाँ R की जगह L लगा देंगे। एट O इज़ एक्टेड अपॉन फोर्स F, तो आपके पास क्या आ जाएगा, FL cos थीटा, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ मेजर्ड इन, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास किस में मेजर होती है, टेस्ला में, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन।
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके पास is given by so IB sin theta delta is the right option. ठीक है, this option suggests that force on a current carrying conductor per unit length is given by IB sin theta. ठीक है, फोर्स अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँ तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, ऐसे मैं थ्योरी पढ़ूँगी तो कुछ समझ नहीं आएगा. मैं यहाँ फार्मूला लिखती हूँ, मैं कहती हूँ F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा. ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ L में इधर ले गई इज इक्वल्स टू IB साइन थीटा. रह गया आपके पास, समझ आ गई. अब ये फार्मूले को ही हमने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया. ठीक है, इन केस व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स लूज ऑल देयर काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट कोलिजन, एक्सरे फोटोन एमिटेड हैज़ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी एंड वेवलेंथ आपके पास क्या होगी, मिनिमम होगी. एनर्जी आपके पास कम हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कम हो रही है, सो एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. In case when electrons lose all their kinetic energy in first collision, X-ray photon की frequency and wavelength क्या होगी, frequency maximum and lambda minimum होगा. This option suggests that electron lose all the kinetic energy in the first collision. जो emitted X-ray photon है उसकी maximum frequency and minimum wavelength होगी. ठीक है, हम कहते हैं according to the relationship frequency and wavelength C is equals to V is equals to F lambda. ठीक है, C is speed of light, F is frequency and lambda as frequency increases wavelength decreases. So if the frequency is maximum, wavelength क्या होनी चाहिए, minimum and vice versa. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज़ इन विल्सन क्लाउड चेम्बर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बीटा पार्टिकल. तो बी आपके पास बीटा पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अल्फ़ा ई अल्फ़ा पार्टिकल है एंड चार्ली आपके पास गैमा रेज होंगी. बीटा पार्टिकल 2 और 3 एब्सोल्युटली स्ट्रेट थ्रेड लाइक लाइन्स. ठीक है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एन इम्प्योर रेडिएशन सॉल्ट सोर्स. The track produced by beta particle were less clear than those produced by alpha particles, less energetic, would spiral in the electric field. ठीक है, so beta is the right option. And we are done with our questions here. ठीक है, you guys can comment down your score in the chat box or in the comment section. ठीक है, and don't forget to attempt the daily test since we are doing the mocks these days. तो आप लोगों को preparation का अच्छी तरह पता चल जाएगा. we are doing provincial mocks. ठीक है, so I wish you all best of luck for your MDCAT exam. Allah Hafiz.